Hello guys, welcome to an Academy Catalyst. Please hit the like button, share and subscribe the channel. And in today's session of an Academy Catalyst, we will be discussing about how to choose an MBA specialization. And I am Shashank Rathore. And before starting the session, we will be discussing some important information regarding an academy, which is an Academy Iconic CAT 2021 subscription, in which you will be mentored by a graduate from a top B school. He or she will be guiding you throughout your preparation. Test analysis and reports will be provided. For maths preparation included, and all benefits of plus are included. And get mentored by graduates from top B school. And if you want to enroll for Iconic CAT 2021 subscription, you can go for my referral code Rathor Live, through which you will be getting a 10% off. Then an Academy learners who crack CAT 2020 with flying colors, in which Shivam Chandak has scored more than 99.98 percentile in LRDI section, and Aditya Gupta, Yatharth, Arkadeep, Anushka, we have Mitesh, Shresh, Piyush, Nikhil, and Siddharth, and you could be the next one. Then the new batches which are getting launched on Academy for CAT 2021 from 5th June. Practice with Expert 1.0 for CAT 2021 has already started, in which Amit sir, Ronak sir, and Abhilasha ma'am are conducting the classes. And then from 9 June, Supreme Weekday Batch 3.0 for CAT 2021 is starting, in which Abhishek, Ashish sir, Ronak sir, Ravi sir, and Harpreet ma'am are conducting the classes. And from 12th June, Accelerator Batch 1.0 for CAT 2021, in which Praveen sir, Ravi sir, and Shalini ma'am are conducting the classes. Again, if you have Plus or Iconic, you can directly enroll into these batches. Or if you don't have one, you can subscribe to one using my referral code Rathor Live. Then India's biggest weekly scholarship test for CAT aspirants every Sunday at 12 p.m. Take it live from Android. You can use my referral code Rathor Live to enroll into this, and then you can compete in the test. Rank 1 to 3 will be getting 1 year CAT Plus subscription. Rank 4 to 10, 75% scholarship. Rank 11 to 50 will be getting 50% scholarship. Rank 51 to 200 will be getting 25% scholarship. Ask a doubt feature by an academy, in which you can send your doubts to an academy 24 into 7. And for that, you just have to take a picture or take a screenshot, crop it accordingly, fit in the options and the options also. And please mark the section correctly to which your question belongs, whether it belongs to QA, LR, or DA. Then we have the bumper offer for CAT 2021, in which if you're going for a 6-month subscription today, in the month of June, you will be getting 1 month extra, and you can cover most of the MBA entrances in that extra 1 month. So offer extended on popular demand. And if you want to buy one, you can use my referral code Rathor Live, through which you will be getting a 10% off. Then IPMAT, BBN, Total Management. So for these exams, comprehensive 1 year batch for IPMAT 2022 is starting. You can go for 1 year plan, you will be getting 2 months for free, and if you're going for 25-month plan, you'll be getting 3 month subscription for free. BBA and hotel management subscription, you can use my referral code Rathor Live again to get 10% off. So now let's start the session. So what things you should consider while choosing your MBA specialization? How to choose your MBA specialization? ओके, बेसिकली एमबीए जो है हमारा, जो भी हम लोग एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो एक चीज पर्टिकुलरली एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता. यू हैव टू कंसिडर बहुत सारी चीजें. हमारी पर्सनल डेवलपमेंट में भी वो हमें हेल्प करता है. हमारे जिस सब्जेक्ट में हम स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं वो भी हेल्प करता है. लीडरशिप क्वालिटीज को भी वो इन्हांस करता है. एंड ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है. जॉब रिलेटेड स्किल्स जो होती हैं, इसके लिए भी एमबीए स्पेशलाइजेशन या एमबीए हमें हेल्प करता है कि जिस सेक्टर में हमें जाना है उसमें एमबीए में स्पेशलाइजेशन करने के बाद हमें क्या क्या चीजें हेल्प करेंगी. तो बहुत सारी चीजें हैं. एमबीए, काफी सारे लोग एमबीए से पहले टिल दे आर डूइंग देयर ग्रेजुएशन और in any of the field, most of the students are introvert while preparing for MBA entrances, and after getting into MBA ज्यादातर लोगों का कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है आफ्टर गिविंग इंटरव्यू, जीडीपीआई. तो ये सारी चीजें भी हेल्प करती हैं. तो अब बात आती है कि एमबीए स्पेशलाइजेशन चूज कैसे करें. सबसे पहले जो एमबीए स्पेशलाइजेशन चूज करने के लिए जो मेरी तरफ से पहला क्वेश्चन आएगा वो है कि
मैक्सिमम लोग अपना जो ग्रेजुएशन में टॉपिक पढ़ के आते हैं, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन ग्रेजुएशन ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन योर ग्रेजुएशन ऑल्सो। सबसे पहले मैं इसी से स्टार्ट करूंगा कि आपकी ग्रेजुएशन पे भी डिपेंड करता है कि आप एमबीए किस में करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने बीबीए किया हुआ है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया हुआ है, या बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज किया हुआ है, या बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज किया हुआ है, या बीकॉम करके आए, तो ऑब्वियसली एमबीए उनके लिए एक परफेक्ट सिनेरियो जनरेट होता है कि ठीक है, यू हैव स्टडीड मेनी थिंग्स, तो आप उसको आगे कंटिन्यू करने वाले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बट साइंस स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आ रहे हैं, डेंटल स्टूडेंट्स आ रहे हैं, देन साइकोलॉजी वाले काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बीए साइकोलॉजी करते हैं, दे गेट इनटू एमबीए एंड वो एचआर वाली फील्ड प्रेफर करते हैं। जो बीकॉम बीबीए बीएमएस करके आए, इट डिपेंड्स अपॉन, कईयों ने बीबीए में जो अपना मेजर लिया होता है वो फाइनेंस लिया होता है, देन दे कंटिन्यू विद दैट ऑल्सो। देन बीएमएस में अगर किसी ने मार्केटिंग ले लिया, या बीबीए में मार्केटिंग ले लिया, तो मार्केटिंग। फॉर एग्जाम्पल बीएससी मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट है, या बीएससी फिजिक्स वाला स्टूडेंट है, ऑब्वियसली दे विल प्रेफर फाइनेंस, फाइनेंशियल रोल। या अगर अब जो नया स्पेशलाइजेशन आया है, एनालिटिक्स का स्पेशलाइजेशन नया आ गया, तो वो एनालिटिक्स प्रेफर करते हैं। इंजीनियर्स गो फॉर फाइनेंशियल रोल फिनटेक कंपनीज के लिए, या इंजीनियर्स एमबीए एंड आईटी भी प्रेफर करते हैं, या इंजीनियर्स मार्केटिंग एनालिस्ट, अब तो एनालिस्ट का रोल आ गया तो उसमें भी जाने लगे हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर ग्रेजुएशन ऑल्सो। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने ग्रेजुएशन किस फील्ड में किया है, तो वो भी डिसाइड करने में एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप एमबीए किस फील्ड में करने जाने वाले हैं फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 2, अब बात आती है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, या आपकी स्ट्रेंथ क्या है, या आपकी वीकनेसेस क्या है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल माई सेकेंड क्वेश्चन वुड बी, जो आपको मदद करने वाला है एमबीए करने में या स्पेशलाइजेशन चूज करने में, व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ क्या है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एनीबडी, फॉर एनी पर्सन इट कैन बी बीइंग अ लीडर, मतलब कईयों में लीडरशिप क्वालिटीज काफी अच्छी होती हैं, जो कॉलेजेस स्कूल वगैरह में भी वो अपना शो करते हुए आ रहे होते हैं। देन ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा, ये भी कईयों में क्वालिटी अच्छी होती है कि वो इंफॉर्मेशन को करेक्टली प्रोसेस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, देन दे कैन गिव रिजल्ट। देन कनेक्टिंग विद अदर्स कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, कि आप कैसे एक कनेक्ट कर पाते हैं लोगों के साथ, या डिफरेंट, मतलब आप सपोज यू आर वर्किंग इन वन डिपार्टमेंट, यू हैव टू कनेक्ट विद अदर, देन यू आर connecting with client marketing and all these things. So connecting with others can also play an important role, and attention to details, तो इनमें से आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ कौन सी है, तो वो भी डिसाइड करेगा कि आपको कौन सा। अगर आप लीडर हैं तो ऑब्वियसली यू विल बी गोइंग फॉर द मैनेजरियल रोल्स या टीम लीडर रोल्स, एंड यू विल बी हैंडलिंग अ टीम, यू विल बी हैंडलिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, कैसे हैंडल करेंगे सारी डिफरेंट सिचुएशंस को, डिफिकल्ट, अगर आप लीडर हैं तो आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल कर पाते हैं, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अटेंशन टू डिटेल्स, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर इन टू फाइनेंस एंड इफ यू आर into operations, then detailing is very important. प्रोडक्ट, अगर आप प्रोडक्ट टीम को लीड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट शुड बी एज पर दी कंज्यूमर डिमांड, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो ये देन द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी नेक्स्ट, विच कैरियर पाथ यू वांट टू चूज, आप कौन सा कैरियर पाथ लेना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर जो अभी के जो मेजर डोमेन्स होते हैं, जैसे फाइनेंस इज वन ऑफ द मेजर डोमेन, देन यू हैव एचआर, देन यू हैव मार्केटिंग, देन यू हैव एनालिटिक्स आ गया है, दी एनालिटिक्स। Analytics में again you have different roles. Then you have consulting. Most of the companies, like big companies like KPMG, E&Y, they are consulting companies. Then managerial roles, or you can go for the management thing. So ये सारी चीजें important है. Then you have health and hospital administration also. And
Then you have tourism industry now. Ambient tourism is also one of the important sector, and some new IIMs are also offering ambient tourism also. तो कैरियर पाथ आप क्या चूज करना देंगे? आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है। अब फाइनेंस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि यू हैव टू हैंडल अकाउंट। फाइनेंस इज related to market, how the market is growing, क्या बूम है क्या बूम नहीं हो रहा है। देन फाइनेंस इज रिलेटेड टू अपना स्टॉक मार्केट से भी रिलेट कर सकते हो, बैंकिंग से भी रिलेट होता है। फाइनेंस इज रिलेटेड टू रियल स्टेट ऑल्सो। एच आर में भी बहुत सारे रोल्स होते हैं। एच आर एनालिस्ट का रोल आ गया। देन एच आर हैंडल्स जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एच आर जो होते हैं मेजरली वो एज अ मेंटर भी बिहेव करते हैं। देन मार्केटिंग टीम, प्रोडक्ट, customer acquisition, बहुत सारी चीजें। एनालिटिक्स कैन बी रिलेटेड टू एवरी फील्ड, यू कैन गो टू इनटू फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग। तो ये सारी चीजें बोला। कई लोगों को टूरिज्म में इंटरेस्टेड है। सम पीपल वांट टू वर्क फॉर एग्जांपल किसी ने बीडीएस किया है, किसी ने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है, दे कैन गो फॉर हेल्थ एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप क्या कैरियर पाथ चूज करना चाहते हैं, आपको किस में इंटरेस्ट है, आपका ग्रेजुएशन से कैसे रिलेट होगा या ग्रेजुएशन के मेजर से कैसे रिलेट होगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट career path right now, and there are more developing. For example, एविएशन मैनेजमेंट आ चुका है, सस्टेनेबल एनर्जी आ चुका है। तो काफी सारे मोर कैरियर पाथ आर डेवलपिंग, एंड हाउ कैन यू रिलेट विद देम टू योर इंजीनियरिंग। तो वो एक इम्पोर्टेंट प्रोस्पेक्ट हो जाता है। ओके, एक और इम्पोर्टेंट मतलब कई लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कई लोगों को ज्यादा लोगों के साथ काम करने में इंटरेस्ट नहीं होता, बट दे परफॉर्म। अगर वो इंडिविजुअली भी परफॉर्म करें तो कई लोग काफी अच्छे से काम कर पाते हैं। कई लोग टीम में कंफर्टेबल नहीं होते। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है एमबीए में डिसाइड करने के लिए। डू यू लाइक वर्किंग विद पीपल, या आपको इंटरेक्शन लेवल जो है वो ज्यादा लोगों के साथ करना पसंद नहीं है? कैसे अलग अलग हो सकता है, क्योंकि काफी सारे जो रोल्स होते हैं उनमें डेली यू हैव टू मीट पीपल, डेली यू हैव टू इंटरैक्ट विद लॉट्स ऑफ पीपल। अगर आप क्लाइंट एक्विजिशन में है या कस्टमर एक्विजिशन, तो ऑब्वियसली यू हैव टू डू लॉट्स ऑफ मीटिंग। फॉर एग्जांपल इसमें कुछ कंसिडर हो सकते हैं कि यू आर अ पीपल पर्सन, मतलब आपको ज्यादातर लोगों से मिलना पसंद है, एंड यू लव वर्किंग इन टीम्स। ये हो सकता है। बी, अ गुड टीम लीडर। थर्ड, सी में ये भी हो सकता है कि यू प्रेफर वर्किंग अलोन, बट यू आर अ ग्रेट प्रॉब्लम सॉल्वर। तो काफी सारी चीजें हैं, जैसे ये 4 पॉइंट लिख दिए। उसके अलावा भी कुछ हो सकता है कि आपको कोई इशू नहीं है किसी किसी भी लोगों के साथ काम करने के लिए। तो ये फैक्टर, और कई लोग इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, ये उसी का है। बट इंट्रोवर्ट में भी कई होते हैं कि कईयों को बिल्कुल भी नहीं होता, मतलब काफी लोग जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, मजाक मजाक हैंडल नहीं कर पाते। फिर वर्किंग इन टीम एंड यू शुड बी ओपन टू जोक्स, एंड काफी सारे फैक्टर्स होते हैं उसके लिए। उसके बाद नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, व्हाट आर योर कैरियर गोल्स। मतलब ठीक है, आपको स्पेशलाइजेशन में किस में इंटरेस्ट है वो एक है, और आपके कैरियर गोल्स क्या हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्हाट आर योर कैरियर गोल्स, कि आपको कुछ डिफरेंस करना है। मतलब फॉर एग्जांपल, यू वांट टू वर्क, यू वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, और एक्सपर्ट इन योर फील्ड। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, आई नो many things about data science, as well as I am a master in mathematics. I have done my MSc in mathematics. तो अब मेरा क्या है कि मुझे मैथ्स और इम्प्रूव करना है। मतलब आई वांट टू इम्प्रूव माय मैथ्स टिल द लेवल ऑफ एमटेक या पीएचडी के लेवल तक मुझे इम्प्रूव करना है। तो आई वांट टू बी एन एक्सपर्ट इन माय फील्ड। आई एम अ SAS सर्टिफाइड डेटा साइंटिस्ट। तो मैं चाहता हूँ कि अब मेरे को और भी डेटा साइंस के क्वालिफिकेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू बी अ पाइथन प्रोग्रामर एज वेल एज डेवलपर, और आई वांट टू लर्न डिफरेंट टूल्स। सो वही बात आ गई कि आपका गोल क्या है।
तो ये एक इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपके करियर गोल्स क्या हैं। आप वर्क करना चाहते हैं, यू वांट टू वर्क फॉर अ बिग कंपनी, यू वांट टू गेट हायर्ड बाय सम बिग नेम्स, तो बॉस्टन कंसल्टिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सबकी अपनी अपनी ड्रीम कंपनीज है। किसी को टेस्ला में जाना है, ऑब्वियसली यू वांट टू गो टू टेस्ला, यू विल वर्क इन अदर वे। इफ यू वांट टू वर्क फॉर एग्जांपल वॉलमार्ट हो गया, फॉर यू वांट टू वर्क फॉर अमेजॉन, इफ यू वांट टू वर्क फॉर एनी अदर बिग नेम, तो आपको अपना जो गोल है वो डिफाइन होना चाहिए, उसी के थ्रू यू कैन अचीव कि वहां पर रिक्वायरमेंट्स क्या है, यू हैव टू गेन ऑल दो स्किल्स। सो कैरियर गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट क्वालिटी होनी चाहिए, व्हाट इज योर वर्किंग स्टाइल। वर्किंग स्टाइल का मतलब है कि आर यू अ फॉर एग्जांपल टीचर एंड मेंटर हो सकते हैं। मतलब यू आर इन अ, मतलब सपोज you get hired as a team lead or you are handling a team of a 20 or 30 people. If somebody is having doubt, you are helping him and mentoring him, clearing his doubt, तो एक वो वाला लेवल आ जाता है। और यू आर अ लीडर जो बाकी लोगों से काफी अच्छे से काम कराना जानता है, तो वो वाला हो जाता है। तो इसके लिए बोलेंगे कि यू कैन टेक चार्ज। अगर मैं अपने बारे में बोलूँ तो आई टेक चार्ज एंड आई कैन गेट थिंग्स डन। तो ये, और इफ यू आर अ गुड टीम प्लेयर, और डी यू कैन ऑर्गेनाइज थिंग्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आप कैसे आगे बढ़ते हैं। ओके, उसके बाद हो सकता है कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर का काम करें। मतलब अब प्रॉब्लम सॉल्वर इज नॉट ओनली अबाउट मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, आप सिचुएशन को इजीली एनालाइज कर सकते हैं। प्रॉब्लम सॉल्वर मतलब इट कैन, कोई भी टाइप का प्रॉब्लम हो, इट कैन बी रिलेटेड टू फाइनेंस, कुछ प्रॉब्लम हो रही है अकाउंट्स में वो, तो और देयर इज एचआर, सम एम्प्लॉयज आर गेटिंग, मतलब एम्प्लॉयज के साथ कुछ इशू है तो आप एचआर टीम के पार्ट है तो आप उनको, मार्केटिंग टीम में तो है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आर यू अ प्रॉब्लम सॉल्वर और नॉट। अब अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए यू नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशलाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द डिपार्टमेंट विच यू आर वर्किंग। तो वो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हो जाता है। उसके बाद एक और क्राइटेरिया जो मोस्ट ऑफ द, इफ यू वर्किंग इन कॉर्पोरेट और इफ यू वर्किंग एनीवेयर, जो सब लोग झेलते हैं, हाउ यू हैंडल द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि एवरी डिपार्टमेंट और एवरी रोल हैज डिफरेंट स्ट्रेस सिचुएशंस या अलग अलग टाइप की डिफिकल्ट सिचुएशंस आपके सामने आने वाले, तो आप उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। इफ यू आर अ काम पर्सन, तो यू विल हैंडल इट कामली। काफी लोग एंग्जाइटी, एंग्शियस हो जाते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। ठीक है। और थर्ड, you can't handle stressful situation, but the thing is you try to do best in that situation। कई बार सिचुएशन आपको पसंद नहीं है बट फिर भी आपको उसमें काम करना ही है, तो वो वाली सिचुएशन आएगी आएगी। तो इफ यू आर अ काम पर्सन यू विल हैंडल इट, यू विल एनालाइज इट। अगर आप एंग्शियस है तो आपको घबराहट भी होगी, काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आपके नेचर पर भी डिपेंड करने वाले हैं, तो आपको वो भी देखना है। ओके बात, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, अब what are you looking in an MBA program? What are you looking in an MBA program? ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आप एमबीए प्रोग्राम में क्या ढूंढ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बात करें तो ऑब्वियसली इफ आई एम आई एम्प्लॉय और मैं एमबीए, आई एम करेंटली वर्किंग फॉर सम कंपनी, एमबीए करने के बाद वो एमबीए मेरी करंट जो पोजीशन है, जो मेरी करंट प्रोफाइल है, या मैं क्या गेन करना चाहता हूँ, उसको वो कैसे हेल्प करने वाला है, तो वो
फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला होता है कि इफ इट्स अ डिग्री, it is going to help you in advance your career. आपको ऑब्वियसली आपको एडवांस करियर में वो हेल्प करेगा ही करेगा। सेकेंड ये हो सकता है कि अगर आप एक फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, यू आर अ मार्केटिंग टीम में आपकी पार्ट है, मार्केटिंग एनालिस्ट वगैरह है, तो मे बी एन एमबीए कैन हेल्प यू टू लीड दी प्रोग्राम, और प्रोग्राम लीड बना देंगे या प्रोडक्ट लीड भी बन सकते हो। तो मतलब इट डिपेंड जो एमबीए की डिग्री आपको कैसे हेल्प करेगा। या थर्ड ये हो सकता है कि इफ यू आर वर्किंग इन अ सर्टेन फील्ड राइट नाउ, इफ यू वांट टू चेंज दैट फील्ड, तो चेंज इन द करियर पाथ में भी हेल्प करता है। तो ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक और चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, एक लास्ट क्वेश्चन हमेशा पूछना अपने आप से, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, डू आई नीड एन एमबीए? सच्ची में एमबीए की जरूरत है नहीं है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। कई लोग पीयर प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर, अलग अलग टाइप के डिफरेंट प्रेशर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली दे डू आई नीड एन एमबीए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप खुद दे सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी चॉइस होती है। तो ये सारी चीजें एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। एंड इट डिपेंड्स अपॉन कि डिफरेंट प्रोफाइल पे बेस करके भी अलग अलग प्रोफाइल्स पे अलग अलग जॉब रोल्स मिलते हैं, तो उससे भी अलग अलग वो हो सकता है। And now there are many options also for being an MBA. You can go for an online MBA, you can go for a campus program, you can go for, अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, then you can go for the पार्ट प्रोग्राम, पार्ट कैंपस, पार्ट होम, मतलब हाफ ऑनलाइन हो जाएगा घर पे बैठ के, हाफ के लिए यू कैन गो देयर, यू कैन, अगर इंडिया में है तो यू कैन टारगेट बिग, मतलब बिग नेम्स, आईएम्स, सबको टारगेट कर सकते हैं, तो वो इन सब चीज़ों के बाद आता है। So thank you guys for this, and we'll catch you soon.